Hi, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Poonam, you're already the host. I'm Yes, co-host. Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. So I hope yesterday's assignment was done and complete. Magic Health. So today we are going. I'm sorry. No, I'm saying yes. Yeah, it was really lovely, to be grateful for the help throughout the day from morning till night. And I loved saying thank you. Even while driving, I was like, thank you to my fingers that I'm holding the steering wheel, and thank you to my feet and to my toes and to my ankles and to my joints, to the knees that could turn, to the arms I could move, to the vision, because of eyes only able to drive. So it was like a lot of fun. I never had so much fun actually doing that assignment before. So today is the next topic, the next day of concentrated gratitude, and that is to do with money. Okay, so money is a very high frequency, a very high energy. उसके लिए हमारी frequency उसके level तक जानी चाहिए. That kind of an insane love that we need to have. तभी पैसा आता है. Otherwise आता हुआ पैसा भी चला जाता है. पैसे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं. So इसलिए अभी जब पैसे के साथ जो हमारी relationship है, if we really want that free flow of money to be coming into our life, that we constantly keep receiving money, for that we kind of really need to go back to our past, जब हमने पैसे को लेके arguments किए थे. ठीक है, जब भी पैसे को लेके हमने अपनी पिछली लाइफ, not last lifetime, ये वाली जो lifetime है, suppose if you're 35 year old, जो आपने मे बी 5 to 35 years के बीच में जो पैसे को लेके आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, उसके कारण पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं. सो पैसा सिर्फ आना नहीं है, पैसा टिकना भी होता है. ऐसे नहीं कि एकदम से लॉटरी लग गई एंड सडनली एवरीथिंग हैज स्लिप्ड ऑफ योर फिंगर्स. It should not be like that. We want money to come to us. We want money to stay also. We want the money to multiply also. While at the same time हम सारे expenses कर रहे हैं जो हमको पैसे देने हैं जहाँ पे, या लोगों को help करनी है, maybe donations करने हैं, या जहाँ पे भी पैसे खर्च करने हैं. ठीक है, it should be like a well, like well, कुआं होता है ना, उसमें कभी पानी सूखता नहीं है. उसमें से और डीप डिग करते हैं तो और ज्यादा निकलता जाता है. तो कितने भी लोग उस वेल से पानी पी सकते हैं, है ना, इतना ज्यादा पैसा आता है. तो अगर हमको उस तरह का पर्सन बनना है तो हमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड अपने पास्ट में जाके डालना पड़ेगा. बिकॉज पास्ट में हमने पैसे को लेके गलत बातें की है, हमने ऐसी चीजें बोली है कि पैसा दिमाग खराब कर देता है लोगों का, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, पैसा ये हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है. So instead of being grateful, we have been talking less about money, like अच्छी बातें नहीं किया हमने. So लेकिन ठीक है, अगर जैसे ये स्क्रीन पे बैग नजर आ रहा है और इसमें से भर के पैसे निकल रहे हैं, they are popping out of the zip also. तो अगर इस तरह के पैसे हमको चाहिए तो हमको ये वाला असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, which is called the magic money. और हमको इसमें पास में जाके सारे जो हमने गड्ढे बनाए हुए हैं पैसे को लेके, उसको हमको आज भरने पड़ेंगे. तो इसलिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड हमको आज करने की जरूरत है when it comes to the money, है ना. बिकॉज इतने सालों के जो गड्ढे हमने पैसे के बनाए होंगे वो सारे हमको एक दिन में भरने हैं. So that is how important. But इसके बाद आप देखना that you will have amazing experiences with money. मतलब बहुत ज्यादा पैसे को लेके हमको सोचना भी नहीं पड़ेगा. So that's what it is. जादुई धन, magic money. So Deepa, would you want to read today? Yeah, ma'am. आप पढ़ो फिर. Day 5, Magic Money. Quote, gratitude is riches, complaint is poverty. Unquote. Christian Science hymnal. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money
can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Quote, whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Unquote. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for everyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. Now, 1 second, Deepa, I'll just break it down into 2 parts in this chapter. तो इसमें पहला सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है that अगर हम envious हुए हैं, मतलब हमने jealousy किया है किसी के साथ कि उसके पास इतने पैसे हैं, वो इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, मेरे पास नहीं है, तो फिर we have already dug a hole. मतलब हम साथ साथ गड्ढे बनाते भी जा रहे हैं, ठीक है? सो हमको बिल्कुल भी we don't have to feel worried about money. ठीक है? इट जस्ट दैट अपनी एनर्जी को एलिवेट करो. पैसा चाहिए ना, और बहुत सारा पैसा चाहिए, अपनी एनर्जी को एलिवेट करो. ठीक है? बिकॉज ये पूरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की बात होती है. सो एनर्जी एलिवेट करने का मतलब है से थैंक यू टू व्हाटएवर मनी वी हैव राइट नाउ. हो सकता है अभी इतना ज्यादा नहीं हो, ठीक है? हो सकता है बस उतना ही पैसा आ रहा है जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं. सो बिल्कुल एक्स अमाउंट आ रहा है और एक्स अमाउंट ही आपके एक्सपेंसेस है, लेकिन आ रहा है ना. देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास माइनस में है ना. सो ये पैसा हमारे ग्रैटिट्यूड के कारण, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, दैट इज व्हाट मैचेस विद मनी की फ्रीक्वेंसी. सो द मोमेंट हमारा ग्रेटफुल हार्ट हो जाता है फॉर व्हाटएवर, अगर आपके पास सिर्फ 5 पीस ऑफ ज्वेलरी है, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. अगर आपके वॉलेट में सिर्फ 1000 रुपीज रखे हुए हैं, you can still be grateful for that 1000 rupees. खाली तो नहीं है ना. So when you have too much of worry about money और दूर जाता जाएगा, वो पास नहीं आएगा, क्योंकि worry की frequency below the line होती है. मैं बार बार feeling chart की बात करती रहती हूँ. So when you go below the line मतलब envy, jealousy, disappointment, worry, you know, like ये सारी जो fear, ये सारी बिलो द लाइन फीलिंग्स होती है जो फीलिंग चार्ट में. तो अगर पैसे को लेके हम कॉन्स्टेंटली बिलो द लाइन रहते हैं, दैट मीन्स हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन तीनों ही लो है. तो जो पैसा हमारे पास है वो भी खर्चा होता जाएगा, आएगा नहीं. तो इसलिए पहले ही पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है दैट डोंट फील वरीड, एनवियस. कितना भी बड़े दुश्मनी है आपकी किसी के साथ में, अगर उनके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती जा रही है, हमको फिर भी उनको ब्लेस करना है. ठीक है? हमको जेलसी जैसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, जेलसी एंड इनसिक्योरिटी. सो वी डोंट हैव टू. ठीक है, दे माइट वेयर बेल्ट्स और शूज और व्हाटएवर व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव. हो सकता है उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज और खरीद ली, हो सकता है उन्होंने 3 गाड़ियां और खड़ी कर ली अपने घर के सामने. ठीक है? या उन्होंने अपने बेटे की या बेटी की शादी क्वाइट फ्यू क्रोर्स में करी. ठीक है? उससे हमको जेलस नहीं होना है. ये चीज मतलब अगेन वन सेम थिंग दैट वी नीड टू बिकम अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट, एंड वी विल. ये 28 चैप्टर्स जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये जो सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं ये बहुत मिनिमाइज होती जाती हैं. यू नो, एकदम से तो खत्म नहीं होंगी, इट टेक्स टाइम. सबका चल रहा है अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होता है.
लेकिन हमारी ये फीलिंग्स बहुत कम होती जाएंगी धीरे धीरे। तो इसीलिए पैसे को लेके नो वरी, नो एनवी, दैट इज बिल्कुल भी किसी को देख के जेलस नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि क्या मेरे पास पैसे नहीं है और ये नहीं है, डिस्करेज नहीं होना है कि मेरे पैसे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी। यूनिवर्स पे डाउट रखेंगे तो फिर सारे डाउट वाली चीजें और बढ़ेंगी। सो दैट वी डोंट हैव टू बी एंड fearful, देयर इज नो रीजन। पैसा बहुत आराम से आता है अगर आप ये सारे असाइनमेंट्स कर रहे हो 28 डेज में। आप इनके कंप्लीशन के बाद 1 महीने के बाद देखना अपना बैंक अकाउंट, ठीक है? यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कहाँ से बारिश होती है पैसे की। मतलब लिटरली आई एम यूजिंग दैट वर्ड दैट इट्स रेनिंग मनी एंड वी बिकम अ मनी मैग्नेट एंड it will keep raining money. आपको पता भी नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, but you will just have enough money for anything and everything. Okay, and there is again one, I'm truly grateful that my income is constantly increasing. ये वाला thought आपको दिमाग में टैटू करना पड़ेगा, ठीक है? I'm truly grateful that my income is constantly increasing. While at the same time आपको gratitude और love की frequency में रहना mandatory होता है, क्योंकि पैसा तभी पुल होता है हमारे लाइफ में। एंड इट्स सो सिंपल। तो अभी जो भी अगर हमारे पास हमारा पैसे का स्ट्रगल है अभी, डजंट मैटर, ये इसीलिए है क्योंकि अभी तक लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड था हमारा पैसे को लेके। हमने हमेशा पैसे की कमी फील करी है और हमने हमेशा पैसे के बारे में नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स किए होंगे, मे बी घर में, घर वालों से, या जैसे भी, या जो सेल्फ टॉक होती है उसमें हमने ये पैसे को लेके ये सोचा होगा हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे क्यों नहीं आ रहे, उसने पैसे क्यों नहीं दिए, ये है वो है। सो बट दैट डजंट मैटर। इसीलिए तो हम ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां हमने बहुत की हैं, बट हम अपने आप को रियलाइज करा लें कि ठीक है गलती थी और उसको हमको कवर अप कैसे करना है, बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को, है ना? वो जो नेगेटिव एनर्जी थी हमारा अभी तक पैसे को लेके, शायद अभी भी होगी, सबलिमल लेवल पे हो सकता है अभी भी हो, और उस एनर्जी को हमको ट्रांसफॉर्म करके टोटली पॉजिटिव एनर्जी में कंप्लेन करना है। इसीलिए नो कंप्लेनिंग अबाउट मनी, नो आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, नो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी और बीइंग क्रिटिकल एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। अगर आप ये भी बोल रहे हो गॉड कितनी महंगी है, कितनी महंगी है, मुझे तो लूट लिया उसने, इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, डज नॉट वर्क। जो पैसा है वो भी चला जाएगा। इसीलिए पैसा जब हाथ में होता है, अगर आपकी हथेली में या फिंगर से आपने पकड़ा हुआ है या वॉलेट निकाला है, उसमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड भरने की जरूरत है। अदरवाइज अगर उसमें कंप्लेन भर दी तो वो वॉलेट फिर खाली होता जाएगा और वो हमेशा ही खाली रहेगा। सो बहुत जरूरी है कि हम कभी भी किसी की कॉस्ट के लिए नहीं कि ओ इसके बैग्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, मुझे नहीं शो ऑफ करने की आदत है। अरे ऑब्वियसली नहीं खरीद पा रहे हो तो मत खरीदो। देयर विल कम अ डे, 6 महीने में, 1 साल में, जब हम बहुत आराम से 1 लाख रुपए का बैग खरीद पाएंगे, हमको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्टेज आ जाती है, ठीक है? अभी नहीं है डजंट मीन कि आप उसके कॉस्ट के बारे में क्रिटिकल हो कि अरे उसके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू। अगर जैसे आप गए किसी स्टोर में, आपने उसका प्राइस देखा, सपोज आपको कोई शर्ट पसंद आई, आपने उसका प्राइस देखा, उसका प्राइस आ रहा है सपोज 7,999। अब आपको लग रहा है मतलब ऑलमोस्ट 8,000 की शर्ट है, नहीं नहीं इतनी तो वर्थ नहीं है। अरे चुप हो जाओ ना वहां पे। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट सिर्फ कपड़े की नहीं होती है, कॉस्ट ब्रांड्स की होती है, कॉस्ट उस स्टोर की होती है जहां पे वो रखा हुआ है, कॉस्ट उस मॉल की होती है जहां पे वो स्टोर बना हुआ है, कॉस्ट उन लोगों की भी होती है जो सैलरीज ले रहे हैं, कॉस्ट मार्केटिंग की भी होती है, जो मार्केटिंग में पैसा खर्च होता है उसकी कॉस्ट भी तो हम ही देंगे ना, वो स्टोर क्यों देगा? तो ऑब्वियसली उनको तो पूरे अपने खर्चे निकालने ही है। तो अगर कोई वैसा वाला ब्रांड है और उसकी क्वालिटी ऑफ द कपड़े बहुत ग्रेट नहीं है, वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज इट। ये चीज हमको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। सो वी आर नेवर गोइंग टू बी क्रिटिकल अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, इतना महंगा है, इतना महंगा है, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती हैं किसी कॉस्ट को डिसाइड करने में। सो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, हम लोग कोई भी अगर हम कोर्स की भी कॉस्ट लेते हैं तो हम पहले उसका पूरा देखते हैं कि ठीक है ये कोर्स है, इसकी बुक्स का इतना कॉस्ट है,
ठीक है, टीचिंग जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उनके सैलरीज का इतना कॉस्ट आता है, एग्जीक्यूशन कॉस्ट इतना है, ये है, मार्केटिंग कॉस्ट कितना है, सैलरीज कितना है स्टाफ का, कॉर्पोरेट का एंड ब्रांच ऑफिसेस का, उस हिसाब से कोर्स की कॉस्ट डिजाइन होती है। वो ऐसे ही थोड़ी होती है। सो अगेन एंड अगेन टेलिंग इतना महंगा, इतना महंगा, इतना महंगा, इफ यू कांट डू इट, इट्स ओके। ऑब्वियसली अगर हमको कोई 10,000 की शर्ट या 12,000 की हमें लग रहा है कि नहीं मेरे लिए स्टीप है, मेरे लिए अमाउंट ज्यादा है, मैं नहीं खरीद सकती इसको, तो नहीं खरीदो, इट्स ओके। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा सबके पास हर चीज का बजट हो, है ना, बट हो जाएगा ना आगे जाके। तो इसलिए उस वक्त हमको अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं पैसे को जिसमें जिसमें हमारा पैसा डिक्लाइन हो। हमको नहीं बोलना है कि वाह इतनी महंगी कॉस्ट है, तो लूट लेते हैं, इस ब्रांड के कपड़े इतने महंगे होते हैं, इसके इतने महंगे शूज हैं, अच्छे भी नहीं होते। वी डोंट हैव टू डू दैट, ओके। सो इन सब चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, मतलब नेवर ट्रीट एनीवन कि उसको ये लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। नेवर एवर डू दैट कि उसको लगे दैट आई एम लेसर देन यू, ओके। अगर आपको पता है कोई आपकी फ्रेंड है, अगर आपको बाहर जाना है कहीं कॉफी पे और आप पूल इन कर रहे हो, पैसे डिवाइड करके कर रहे हो, और उसका अगर बजट नहीं है, व्हाई नॉट गो टू अ लाइक बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, उसको मत फील कराओ दैट ओ आई डू ओनली दीज। नो, इट रियली डजंट मैटर। तो इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे, ये ऑपोजिट ऑफ ग्रैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, एंड हमारी सिचुएशन और वर्सन होती जाएगी। इसीलिए बहुत क्लियरली है कि नो मैटर अभी हमारी जो भी सिचुएशन है, सपोज हमको एक्स अमाउंट कम पड़ता है अपने खर्चों के लिए एंड वी नीड अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपका बिजनेस और आपको लगता है वीकली मुझे इतना पैसा कमाना है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट हमको जो करंट सिचुएशन है, अगर वो पूरी नहीं पड़ रही है, द मनी इज नॉट इनफ, वी हैव टू गेट इट आउट ऑफ आवर माइंड, ठीक है। एंड इंस्टेड आप जो पैसा आपके पास है ना, उसमें उसको सैचुरेट कर दो, भर भर के ग्रैटिट्यूड उसके लिए। आप सोचो कि वो सारा एनएलपी प्रैक्टिस के हिसाब से आप सोचो कि एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें जो वेल्थ आपके पास है, आपके हीरे जवाहरात, गोल्ड एंड डायमंड्स एंड मनी एंड वो प्रॉपर्टीज, उन सबको उस ड्रम में भरो और उसमें ग्रैटिट्यूड से उसको भिगा दो पूरी तरह से, एंड इमेजिन दैट इट इज फुल ऑफ दैट गोल्डन लाइट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ये एनएलपी के हिसाब से आप कर सकते हो। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो हमारे प्रोग्रामिंग करने के तरीके होते हैं ये कुछ कुछ, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस। कभी मौका पड़े, कभी मैं ऑफिस के लिए एनएलपी सेशन लूंगी, आई कीप डूइंग दोज ऑल्सो, देन आई विल लेट यू ऑल ऑल्सो नो। वो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस होते हैं, आप लोग जरूर से अटेंड करना, है ना। तो एनएलपी प्रैक्टिस के हिसाब से जब भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड करूं, तो ये आसान तरीका होता है कि आप सोचो कि एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें सारी आपकी सब कुछ है, प्रॉपर्टीज, पैसा, बैंक अकाउंट्स, आपके ये वो जो भी आपके पास है, और उसको आप भिगा दो थैंक यू से, और आप देखो कि वो पूरे थैंक यू से सैचुरेट हो रहे हैं। जैसे विक्ट्री, हम ऐसे ही मैंने बताया ना कि आपको बहुत विक्टोरियस फील करना है, दैट यू आर एन ओवर अचीवर, okay, so whenever you say I'm very grateful that I'm an overachiever at everything that I want to do, so that time you can imagine कि आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो, you're at the cliff, and there you are raising your hands and saying that wow, I've done it. Whatever it is, that can apply to your money, that can apply to your relationships, that can apply to whatever, ठीक है। so this is how it works. so पैसे को तो देखो बहुत ज्यादा gratitude देने का जरूरत है। तो इसमें लिखा हुआ है दैट द फीलिंग ग्रैटिट्यूड, जब पैसा नहीं है उस वक्त थैंक यू बोलना बहुत चैलेंजिंग होता है। बट जिस दिन आप ये समझ गए ना कि जब तक मैं ग्रेटफुल नहीं होंगी तब तक मेरी सिचुएशन नहीं बदलेगी, तो आप अपने आप आपको आने लग जाएगा। पहले डेलिबरेटली करना पड़ेगा। इट्स ओके टू डू थिंग्स, कभी कभी नहीं थैंक यू दिल से निकलता है, बट इट्स ओके, डजंट मैटर। थैंक यू की वाइब्रेशन ही इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर दिल से नहीं भी निकल रहा है इनिशियली, है ना, जब तक टिल द टाइम वी डोंट फॉर्म अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू इन एवरी सिचुएशन, तब तक हमको मैकेनिकली डेलिबरेटली ही बोलना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। दिल से नहीं निकलेगा बट जबरदस्ती, बट देन डू दैट because that's helping you and that is elevating your life. आपकी हर तरह से abundance बढ़ रही है, ठीक है। so this is how it actually works. हाँ जी दीपा। The subject of money can be a
tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel great gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts,
ask yourself, quote, am I willing to pay the price for this complaint? Unquote. Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money, even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5, magic money. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Pre-read your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each money where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Fourth, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Fifth, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Sixth, after today, put your magic dollar bill somewhere. You will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. In your life, yes. 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you, Deepa, for reading so beautifully. Thank you. आराम से. हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? नहीं मैंने वो उनको म्यूट कर दिया था उन्होंने ऐसे. अच्छा, सो आज की जो हमारा प्रैक्टिस है, आज पूरे दिन भर, ठीक है, सिट डाउन, पूरी चीजें हमको आज सोचनी है, बचपन से लेके अभी तक कहाँ पे किसी ने हमारे लिए पैसे खर्च किए हैं जिसके बारे में अभी तक हमने सिर्फ नेगेटिव ही सोचा होगा या बोला होगा या उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिए, बिकॉज हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है. और फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है टेकन अवे. ओके, सो इन एनी केस अगर हमने ऐसा एटीट्यूड रखा है तो आज हम उसको रिपेयर करेंगे. ठीक है, सो हम अपनी लाइफ को रिवाइंड करके वी विल टेक बैक टू बचपन से जब हम पैदा हुए थे और फिर सोचेंगे कि हम इतने बड़े ऐसे ही थोड़ी हो गए, कितने पैसे हम पे खर्च हुए. राइट, हम पैदा होते से ही किसी ने हमारा मतलब डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल की फीस दी थी. हमें हॉस्पिटल का जो भी अमाउंट आया था पेरेंट्स ने दिया था या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया था, उसके लिए थैंक यू. वो जो कपड़े पहने थे हमने छोटे छोटे से, वो पहले से कोई तैयार करके रख लेता है जब हम पैदा होने वाले होते हैं, पहले से इट्स ऑलरेडी, उसके लिए थैंक यू. वो पैसे से ही तो आया होगा ना ऑब्वियसली. फिर उसके बाद वो जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स और वही सब यूज होते हैं, उन सब के लिए दैट केम विथ मनी. राइट, हमको तो पता भी नहीं है, मतलब वी वर जस्ट टेकन केयर ऑफ, हमारा हाइजीन मेंटेन था, हमको कोई बहुत वो बेबी सोप से नहला रहा था, वी आर नॉट इवन अवेयर. राइट, बट हम ऐसे ही मतलब वी नेवर रियली थॉट अबाउट इट दैट पेरेंट्स ने कितना ज्यादा किया है हमारे लिए. बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने हमको उस टाइम कपड़े गिफ्ट किए, यू नो, शूज दिए और वुलेंस दिए, छोटे छोटे से स्वेटर बना के.
सो बहुत सारी ऐसे, फिर उसके बाद हम बड़े हुए तो हमारे लगातार जैसे हम ग्रो कर रहे थे, वी वर आउट ग्रोइंग द शूज, वी वर आउट ग्रोइंग द क्लोथ्स, नए नए आते गए। उसके बाद जो खाना हमने खाया, अलग अलग तरह का खाना, जो हो सकता है हमको कुछ पसंद था कुछ ना पसंद था, सब वो पैसे से आया, पेरेंट्स ने दिया। फिर स्कूल गए, स्कूल में बुक्स, स्कूल की यूनिफॉर्म की मतलब यूनिफॉर्म के पैसे, जो ट्यूशन फीस होती है, जो स्कूल की फीस देनी होती है, वो सारे। हर बार जब बर्थडे आया, इतने सारे लोगों ने हमको गिफ्ट दी, जो उन्होंने हमारे लिए पैसे खर्च करे। हमारे पेरेंट्स ने हमारे बर्थडे सेलिब्रेट किए, वो प्रॉपर बर्थडे कैप्स लेके, और अच्छा अच्छा खाना घर में बनता था, हमेशा केक बाहर से खरीदा। फॉर ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू बी ग्रेटफुल। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, लाइक बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हमारे तरह के, हमारे जो हमको फिर वो सब नखरे होने लगे, दैट वी वांट टू यूज दैट शैम्पू, वी वांट टू यूज दिस सोप, बिकॉज हम बहुत इन्फ्लुएंस होते थे एड से, बट हमको सब कुछ ही मिलता गया। फिर उसके बाद जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते थे, वहां से भी हमको ऐसी चीजें, या तो क्लोथ्स मिलते थे या हमारा फेवरेट खाना लेके आते थे। हो सकता है हमको रसमलाई बहुत पसंद थी, और जब भी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते थे, वो स्पेसिफिक मिठाइयाँ या समोसे या कोई ऐसी चीज लेके आते थे जो हमको पसंद थी। ठीक है, वैसे से ही आई है वो, उसके लिए हमको थैंक यू सोचना है। फिर बहुत सारी बुक्स जो हम पढ़ते थे, आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लाइक मैंने बहुत जल्दी से ये मतलब नॉवेल्स पढ़नी शुरू कर दी थी। सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज, लाइक बहुत तरह की ऐसी एनिट ब्लिटन की जो बुक्स नॉवेल्स होती थी, बहुत पढ़ी। उन सब के लिए, वो सब पैसे से ही आती थी, तो उनके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद थोड़े और बड़े हुए, कॉलेज में एडमिशन लिया, हमारे ट्रांसपोर्ट के पैसे, कभी हम ऑटो लेते थे, कभी हम कार्स लेते थे, उन सब के, कभी कॉलेज की, हमारी यूनिवर्सिटी की बस होती थी, सो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, सो फॉर दैट वी नीड टू बी ग्रेटफुल। फॉर यूनिवर्सिटी में हम लोग कैंटीन से खाना खाते थे, फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते थे तो इतने आराम से गिफ्ट खरीद के उनको देते थे, कभी कभी पूल इन करके पैसे इकट्ठे मिलके गिफ्ट देते थे उस चीज के लिए। सो इस तरह से कॉन्स्टेंटली फिर हमको लिपस्टिक विपस्टिक लगाने का शौक आया, थोड़ा मेकअप करना, स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रीम्स फेस पे लगाने का मन किया, उसके पैसे किसने दिए। फिर हम जब ट्रांसपोर्ट हॉलीडेज पे गए, कितने हॉलीडेज पे हम लोग जाते थे पेरेंट्स के साथ में, तो अगर आपने वीकेंड पे भी हॉलीडेज किए हैं, वी हैव गॉन टू वैष्णो देवी, वी हैव गॉन टू अलग अलग जगह जहाँ घूमने गए, कभी इंडिया में, कभी घर के पास, कभी कहीं और, कभी मे बी फॉरेन ट्रैवल्स किए हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू फील करना, इवन इफ इट इज कजिन्स के यहाँ जाना समर हॉलीडेज में, सो वो सारे कैसे वहां पे होटल बुक हुआ, क्या हमने वहां खाना खाया, वहां पे जाके हमने कैसा ट्रांसपोर्ट यूज किया, हमको सोचना भी नहीं पड़ता था। ये सब ऑटोमेटेड प्रोसेस से चला पूरे इतने साल। उसके बाद भी हमें अपने पेरेंट्स से कई बार ग्रज होती है ना, मतलब वी हैव फॉरगॉटन दोज। जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमको पता लगता है कि किस तरह से एक एक दिन बच्चों को पालना होता है ना, और कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत इस तरह की चीजें। सो वो सारी ठीक है, उस वक्त सेल फोन्स नहीं होते थे, वो नहीं होते थे, लेकिन बाकी के तो एक्सपेंसेस थे ही ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस, और कितने तरह की बुक्स चाहिए होती है, थीसिस जब हम लिखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, बहुत सारा, इवन डेटा एनालिस्ट को हमको मतलब पैसे देने होते हैं ना, अपनी डेटा को एनालाइज कराने के लिए, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, वो हम खुद तो कभी नहीं करते थे। सारी रिसर्च पेपर्स में आई रिमेम्बर टू हायर स्टैटिस्टिशियन, तो वो इतने पैसे लेते थे। सो इस तरह से सारे वो मोमेंट्स। उसके बाद शादी हुई हमारी, ठीक है, शादी हुई, उसमें कितने पैसे हमारे पेरेंट्स ने खर्च किए, और वो बेचारे सिर्फ तब नहीं खर्च किए, वो शादी करके वो बेचारे आज भी कर रहे हैं। मतलब इट डज नॉट एंड दैट शादी कर दी और लड़की चली गई है दूसरे घर में, या हो गया मतलब खत्म हो गया है, उसके बाद के सारे फेस्टिवल्स, मतलब इट इज लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली, पीपल हैव स्पेंट ऑन अस ऑल आवर लाइव्स, इजंट इट। मतलब मुझे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत बीच में शौक हुआ था, सो माय पेरेंट्स पेड सो मच फीस फॉर मी टू लर्न द म्यूजिक। आई यूज्ड टू प्ले लाइक वायलिन, एंड आई यूज्ड टू लर्न फॉर दैट वायलिन। फिर मैंने इटालियन कुजीन का खाना बना, मतलब आई वांटेड टू लर्न इटालियन, उसके लिए मैंने क्लासेस दी, सो दे कॉन्स्टेंटली पीपल हैव बीन पेइंग फॉर अस। सो उसके बाद भी हमको कंप्लेंट्स रहती हैं,
सो टुडे इज अ डे जब हमको पूरा बचपन से लेके अभी तक जिसने भी हमारे लिए पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, शादी होके फिर हम इन लॉज के घर में रहे, हमको इतना अच्छा घर मिला, हमको छत मिली, उसके अंदर लग्जरीज थी, किचन था, अपना खुद का बाथरूम था, बेड, फूड ऑन द टेबल एवरी डे, सब कुछ हमको मिला, है ना। मतलब दे ऑल हैड ऑल दैट केबल टेलीविजन दैट वी यूज्ड टू हैव अर्लियर। उसके बाद वो सेटअप बॉक्सेस होने लगे, उन सब के पैसे, सब कुछ ही पैसे से आता है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर टुडे। सो यही सारी चीजें। डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? यस, एंड नॉट जस्ट फूड टू ईट, वी वुड गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल्सो हैव फूड देयर। कॉलेज के कैंटीन्स में भी। डिड यू लिव इन अ होम? होम में कितनी सारी चीजें होती हैं, बिजली, पानी, सारे जो नेसेसिटीज हैं, लग्जरीज हैं घर में, टेलीविजन्स थे, they all came with money, isn't it? एजुकेशन के पैसे हमारे, हम स्कूल कैसे जाते थे? अगर आपने अपनी फेवरेट बाइसिकल थी आपके पास स्कूल जाने के लिए, या शाम को आप चलाते थे स्कूल से वापस आके, वो बाइसिकल के पैसे कहाँ से आए थे? ठीक है, वी हैव एंजॉयड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, बट हमने कभी सोचा नहीं। स्कूल में रोज टिफिन लेके जाते थे, उस टिफिन के पैसे, और रोज का जो खाना होता था जो टिफिन में हम लेके जाते थे, सारे स्कूल बुक्स, वेकेशंस, बर्थडे गिफ्ट जो हमने ली, बहुत सारे टॉयज हमारे पास बचपन में हुआ करते थे, उन सब के कपड़े, हमारे मूवीज देखी, बहुत लग्जरी होती थी कि पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखना, ठीक है। और प्लेइंग अ स्पोर्ट, आई वाज आल्सो स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर। उसके बाद मेरा छूट गया था क्योंकि मेरा कॉलेज आ गया था, बट उसकी जो ट्रेनिंग होती थी, आई यूज्ड टू गो टू भारतीय लोक कला मंडल फॉर माय ट्रेनिंग ऑफ बैडमिंटन फ्रॉम अ वेरी सीनियर पर्सन, or like, but he was very expensive, so I don't even know, I got skilled at playing badminton, but पैसे तो मुझे अभी फीस भी नहीं याद है उनकी, मतलब ये लिटरली ये वाली सिचुएशन है, तो फीस भी नहीं पता होती है, but then it did, I mean, like, someone paid, my parents paid for it, so it was like that. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई हॉबी, पेंटिंग वेंटिंग की क्लास हो, बीमार होते थे डॉक्टर के पास जाते थे, उसके पैसे हमें, लाइक, पेरेंट्स पेड, वी डिडंट इवन रियलाइज, ठीक है। फिर उसकी मेडिसिन लेके आते थे, उनके पैसे। डेंटिस्ट के पास कभी हम गए हों, अब वो बहुत आराम से हमने टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस क्रीम, सोप, शैम्पू, बचपन से ऐसे ही थोड़ी आ रहा था, आई मीन, लाइक, देयर वाज मनी पेड फॉर इट। cars, so I remember we had बड़ी old fashioned सी cars थी हमारे पास, एक प्रीमियर पद्मिनी थी और दूसरी एक फिएट थी, मतलब उस जमाने में जो इतना, so parents could get that for us, no, I mean, like, it was so amazing. So all these things जो memory lane में जाके आप देखो, एक एक चीज जो पैसे से आई है, आज वो दिन है, पूरा दिन सैचुरेट कर दो जब मौका पड़े। इसीलिए इसमें ऑथर ने बोला है, सिट डाउन कामली एंड गो बैक इन द मेमोरी लेन, मतलब आराम से बैठो ठंडे दिमाग से, और सारी वो चीजें चूज कर करके निकालो, एंड से एंड फील थैंक यू, जैसे जैसे एक एक चीज याद आती जाएगी। ये याद आया कि आपको स्पेसिफिक टूथब्रश या टूथपेस्ट चाहिए था, थैंक यू, फिर उसके बाद आपको अगर नवरात्रों में कंजक के भी पैसे मिलते थे, 10 रुपए, 5 रुपए, और वट एवर इट वॉज, थैंक यू फॉर इट। ऑल द बर्थडे गिफ्ट्स, अगर आपको जो जो याद है, हर बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू। सो दिस इज व्हाट, सो इट सेज, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल इंस्टेंस एंड मेमोरी, बिकॉज when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. अगर पैसे में पैसे बढ़ाने हैं तो मेमोरी लेन में जाके थैंक यू बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ग्राउंड जब फर्टाइल हो जाता है ना, उसमें आप कुछ भी बो, उसमें आपको घर खरीदना है, उसमें आपको गाड़ी खरीदनी है, उसमें आपको बिजनेस एक्सपेंशन करनी है, तो उस लैंड को तो फर्टाइल बनाना पड़ेगा ना। जैसे फार्मर होता है, पहले वो गड्ढे वड्ढे सारे कवर अप करेगा, फिर वो मैन्योर डालेगा, फिर उसको अच्छे से वो सब डाल के अच्छा फर्टिलाइजर करके वो ग्राउंड को समतल करेगा, and now he will grow his crops on that. So if you really want to grow the crops and want it to flourish, मतलब पैसे का आपको सीड बोने हैं और उसको बहुत फ्लरिश एंड थ्राइव कराना है, उसके लिए उस ग्राउंड को प्रिपेयर करना है ना। तो आज हम ग्राउंड को प्रिपेयर करने वाला काम कर रहे हैं। अभी हम बीज बोने का भी करेंगे, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 में होगा वो,
ठीक है, वो बीज बो के उसको फ्लरिश करने का भी काम करेंगे। अभी तो हम लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमने पास में बहुत गड़बड़ की हुई है व्हेन वी कैन टॉक अबाउट मनी। सो इसलिए हम पहले उसको कवर अप कर रहे हैं और बहुत ही फर्टाइल कर रहे हैं। और जैसे ही हमने ये किया, हमको इंस्टेंटली एक्शन एंड रिएक्शन देखो साइमल्टेनियसली होता है, हमको रिएक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो एक्शन हम आज करेंगे ना, पूरा दिन थैंक यू ग्रेटिट्यूड में रहेंगे अबाउट ऑल द मनी इन द पास्ट, अपने आप देखोगे कि आपको सडनली लाइक ऑफर्स मिल जाएंगे, या आपको हमेशा से कोई योर फेवरेट चीज चाहिए थी, आपको कोई वो गिफ्ट कर देगा, या कोई आपको 1+1 ऑफर मिल जाएगा। जो आपको सामान खरीदना था शुरू से, आपको उस पे सुपर ऑफर मिल जाएगा। मतलब सपोज आपको कोई बहुत अच्छी ड्रेस पसंद थी एंड यू फेल्ट दैट नहीं नहीं वो 6,000 रुपीज की मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, अभी मैं नहीं खरीद सकती, इतना नहीं स्पेंड कर सकती, वही ड्रेस आपके लिए 1,999 की हो जाएगी। आप ये देखना, ऐसे कमाल मेरे साथ रोज होते हैं एंड इट्स एन एवरीडे थिंग। आई मीन एनीथिंग दैट आई वांट टू बाय कम्स ऑन ऑफर। जब मुझे लगता है कि चलो अब मैं खरीद ही लेती हूँ उसको, एंड इट कम्स ऑन ऑफर, एंड इतना कंपेलिंग ऑफर होता है दैट आई कांट इवन टेल यू। I mean, same cheese I've seen someone else buy for 6,000 and I'm buying it for 2,000. This is how easy it becomes. Life becomes so easy. And the same, your favorite thing somebody will gift you. You don't even realize it. So मतलब आपको genuinely चाहिए था, आप पैसे खर्च करके उसको खरीदना चाहते थे। और इस तरह की भी चीजें होने लग जाती है। एंड डेफिनेटली पैसा तो आता ही है, मतलब हार्ड कैश तो आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके साथ साथ ये सब भी होता रहता है। ठीक है, तो आज हमको पूरे दिन थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग जो बचपन से अभी तक की है, दिमाग पे जोर डाल के वी हैव टू रिवाइंड आवर लाइफ एंड गो बैक। ठीक है, अब इसके अलावा आज का असाइनमेंट ये तो करना ही है पूरे दिन, वो मन वाला है, मन में करना है, मन में थैंक यू फील करना है, कुछ लिखना नहीं है, कोई वो करना नहीं है, बट मन में लगातार थैंक यू फील करना है फॉर एवरीवन हु स्पेंड मनी और अस। ओके, फिर असाइनमेंट वाइज आज एक, जैसे आपने सपोज 20 रुपीज या 50 रुपीज या 100 रुपीज का नोट लिया। ठीक है, वो 5 रुपए का भी नोट हो सकता है, आई डोंट नो 5 रुपीज अभी आते हैं कि नहीं आते हैं। सो सपोज 10 रुपीज से शुरू करते, तो 10 रुपए का आपने नोट लिया। जितना 10 रुपए का साइज है ना, मतलब जितना उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है उस रुपी नोट की, उतनी ही एक वाइट कलर का प्लेन पेपर काट के उसके ऊपर चिपकाना है फ्रंट साइड पे, जहाँ गांधी जी का फोटो होता है इन द इंडियन करेंसी। तो आप जिस कंट्री में रहते हो ना, वी आर ऑल लॉक्ड इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमको अपने कंट्री की करेंसी लेनी है, ये हमको अपने कंट्री की ही करेंसी पे करना पड़ेगा ये वाला असाइनमेंट। तो जो इंडिया में जो लोग रहते हैं वो रुपी पे करेंगे। ठीक है, जो सिंगापुर में है वो सिंगापुर डॉलर्स पे करेंगे, जो यूएस में लोग हैं वो वहाँ अमेरिकन यूएसडी में करेंगे। सो इस तरह से हमको अपनी करेंसी का, पीपल हु आर इन दुबई दे विल डू ऑन दिरहम्स। सो अपनी करेंसी पे हमको जितना, जो भी मिनिमम अमाउंट, डज नॉट मैटर कि आपने कौन सा वाला नोट लिया है, बट इट हैज टू बी दैट पेपर वाला करेंसी। सो उस पेपर करेंसी में जितनी बड़ी वो है 10 रुपए का जैसे नोट है, उतना ही बड़ा प्लेन व्हाइट पेपर आपको काटना है, और सामने की साइड जहाँ पे वो नंबर और जो फोटो लगी होती है वहां पे चिपकाना है। ग्लू इट विद अ ग्लू स्टिक। ओके, यू वांट टू स्टेपल इट, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगर आपके घर में ग्लू स्टिक नहीं है, और असाइनमेंट तो आज ही करना पड़ेगा और वो भी सुबह करना होगा, ठीक है, तो उस पे आप स्टेपलर से कर दो, बट उसके ऊपर चिपक जाना चाहिए, और उस पे लिखना है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो। कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इट, बिकॉज एग्जैक्टली वर्ड्स यही होने चाहिए। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, अब इस नोट को आपको अपने फिंगर्स में पकड़ के थैंक यू फील एंड से थैंक यू, और एक बार सुबह एक बार शाम को करना है। एक बार सुबह आपको ये नोट पकड़ना है, इसको रीड करना है और थैंक यू बोलना है। ठीक है, और फिर शाम को दोबारा से करना है। और ये इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अब से इस वाले मैजिक डॉलर बिल को हम अपने वॉलेट में, पर्स में या पॉकेट में रख सकते हैं। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करेगा पैसे, इसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, एंड वैसे इसमें लिखा हुआ है कि 2 बार असाइनमेंट के हिसाब से, बट रॉन्डाबर्न ने ये भी लिखा हुआ है, और एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू, आप इसको हाथ में पकड़ के खूब सारा लव एंड ग्रेटिट्यूड फील करो फॉर ऑल द मनी पास्ट से आज तक जितना स्पेंड हुआ है। ठीक है, एंड रीड योर रिटन वर्ड्स एंड बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी यू हैव बीन गिवन इन योर लाइफ।
ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। और इसमें कि जितनी सिंसियरली आप फील करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी अबंडेंस बढ़ेगी। ठीक है, सो अब इसमें लिखा हुआ है कि आपको पता भी नहीं होगा दैट कैसे आपके सर्कमस्टांसेस बदलने लग गए हैं। यू नो लाइक आपको सडनली अनएक्सपेक्टेड कैश आ जाएगा, मतलब किसी और को आपको देने होंगे, वो इतने सालों से नहीं दे रहा, आप भूल भी गए उस पैसे के बारे में, अब आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है उसके बारे में सोच के, उसने देना नहीं है मुझे। ठीक है, एंड सडनली दैट पर्सन कम्स एंड गिव्स यू मनी। ठीक है, सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड चेक आ जाएगा, किसी चीज पे आपको रिबेट मिल जाएगी, हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, या कॉस्ट कट हो जाएगा उस चीज पे, या फिर मटेरियल थिंग आपके पास एकदम से आ जाएंगी। सो हमें पता भी नहीं है कि किस तरह से ये होता है, बट बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और इसमें क्लियरली है, एन अबंडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर मनी इक्वल्स एन अबंडेंस ऑफ मनी। मतलब जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फॉर मनी, उतनी ज्यादा बरकत जिंदगी में। बरकत मतलब यू विल थ्राइव एंड फ्लरिश इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हियर। ओके, तो जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड उतनी ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी, ये उसका मतलब है। और अगर कभी भी पैसे का लैक आपको फील मतलब ऐसे लगता है, ठीक है, या कुछ होता है, आप एनएलपी टेक्निक यूज करो। आप सोचो, जैसे ही आपको लग रहा है दैट पैसे कम है, आप इमेजिन करो कि देयर इज अ बास्केट और देयर इज अ ग्लास। ओके, कि एक ग्लास रखा हुआ है, अभी आपको पैसे की कमी रख रही है, इसका मतलब है ग्लास सिर्फ 1/3 भी फुल नहीं लग रहा। आपको ये लग रहा है ना कि अभी तो मेरा ग्लास मतलब मेरी अबंडेंस का जो ग्लास है, पैसे का ग्लास है, वो 1/3 भी फुल नहीं है, वो मे बी सिर्फ 10% ही फुल है, 90% अभी खाली पड़ा है ना। आप उसको इमेजिनेशन में ऊपर तक और उसमें से पॉप आउट हो रहे हैं पैसा, आप ऐसा फील करो। और हम सबके बहुत सारे मनी के एक्सपीरियंसेस हैं इसमें। मतलब पैसा इज द इजिएस्ट कर्मा टू चेंज। सबसे आसान कर्मा होता है ये चेंज करना, बस ग्रेटिट्यूड के साथ में। सो इफ एनीवन वांट्स टू शेयर देयर मनी जर्नी या किस तरह से प्रोस्पेरिटी बढ़ी, आप you can freely share after we've done both the books. But there's so many of us, my prosperity has increased so much ever since being into these practices for the last 3 years and 3 months, 3 years and 2 months now. Yeah, 3 years and 2 months. तो 3 साल 2 महीने में इतना मार्क डिफरेंस आया है। मतलब मैंने जितना टारगेट रखा था कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, तो मैंने स्पेसिफिक टारगेट, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ही हाई था, मैंने उतना टारगेट रखा हुआ था कि मैं इस एक्स अमाउंट मेरे सेविंग्स अकाउंट में कभी भी इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, एंड टुडे आई हैव 3 times more than that। मतलब जो वो ही ऑलरेडी मेरे लिए बहुत हाई था। टुडे आई हैव 3 times more than that, एंड उससे कम कभी जाता ही नहीं है। चाहे मैं कितना भी फॉरेन ट्रिप्स कर लूं, चाहे मैं कितने भी खर्चे कर लूं, चाहे मैं कितनी भी एक्सपेंसिव बैग्स एंड ज्वेलरीज कर लूं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स एंड बैग्स एंड शूज एंड ऑल ऑफ दैट, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ देम। एंड आई लव, मैं बहुत प्यार से जाती हूँ। मैं कभी उसको मतलब ये ऐसे सोच के नहीं जाती कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा वो खरीदने में, नेवर। बहुत प्यार, दिल में प्यार भर के उस चीज के लिए आई गो एंड आई स्पेंड एंड आई नेवर थिंक अबाउट इट। But earlier it was not like that. There was a lot of struggle in my life also, but then things have changed. And if you ask me from where it has come, I really don't know. I have no idea. I don't even want to think about कि कैसे पैसे आए और कैसे अकाउंट में बढ़ता जा रहा है। I really have no idea and don't even want to think about it. वो यूनिवर्स का काम है, जो उनका काम है वो उनके सर ही है। So I don't even think about it, but it will just happen. आप इसको करो और एक्सपीरियंस करके देखो, मजा आ जाएगा। When it comes to you will have money for anything and everything that you want to do। ठीक है, इसलिए आज के बाद से नो कंप्लेन। रोंडा बर्न ने इसमें बोला है आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि ठीक है मैंने कंप्लेन कर दी, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेन और नॉट? बिकॉज even one complaint about money will slow or even stop the flow of money in our life. It is that powerful. So from this day forward, make a promise to yourself that we will never complain or we will never use money in a wrong connotation ever. Okay, so you practice here. So by count your blessings. We have to start our day early in the morning by writing 10 blessings and usko reread करके 3 बार thank you बोलना होता है। और आज sit down with ease, take a moment for yourself. Okay, इतना mad rush life में अच्छी बात नहीं होती है। अपने मोमेंट्स को आपको स्टील करना पड़ेगा।
24 घंटे में से हम अपने आप को आधा घंटा भी नहीं देते हैं कई बार, ठीक है। सो अपने आप पे ध्यान दो, सिट डाउन, गो बैक टू द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन, बचपन से लेके अभी तक जिन जिन लोगों ने हमारे लिए पैसे खर्च किए, हमको उन सारी चीजों को याद करके दिल से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फ्रॉम योर हार्ट, ओके। और आज की प्रैक्टिस जो है, जो आपको नोट लेना है, उसमें सामने वाली साइड पे आपको प्लेन व्हाइट पेपर चिपका के उस पे लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। और इसको आज से अपने पास रखो और आज मॉर्निंग में और इवनिंग में इसको होल्ड करके दिल से सारे पैसे के लिए थैंक यू करना है जो आज तक आपने इंजॉय किए हैं, ठीक है। और आज के बाद से इस मैजिक डॉलर बिल को आप अपने पास ही रख सकते हो और जब भी नजर, मैंने विजन बोर्ड पे लगा दिया है तो आंखों के सामने ही रहता है वो हमेशा। फिर उसके बाद रात को सोने के जस्ट पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, पत्थर पकड़ के रन थ्रू द डे एंड पिक आउट द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक आउट ऑफ इट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस। और अब हम दूसरी बुक पे चलेंगे क्योंकि हमने कल पढ़ी नहीं थी, आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड। सो हम वो दिस इज ये वाला जो दूसरी बुक है, द बुक्स नेम इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड और ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। और इसमें ये जो हम अलग अलग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स सीख रहे हैं, तो हमने बहुत सारी थैंक यू मेथड, स्लीपिंग टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक सीखी है, विजुअलाइजेशन टेक्निक, बर्ड ऑन मेथड। और अब हम देखेंगे द आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड। दैट मीन्स दैट आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कुछ अपने आप से कहा सुनी करना, कुछ सुनो कुछ कहो फिर उसको रीजन करो, है ना, उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड ये बहुत ब्यूटीफुल है, जिन्होंने ये बनाया था डॉक्टर क्विम्बी ने। तो हम पढ़ते हैं इसको। इट इज बेसिकली जस्ट टू मेक अस रिमाइंड कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, वो हमारे फॉल्टी थॉट पैटर्न के कारण हो रहा है, तो उसको करेक्ट करना। आर्ग्यूमेंट करो कि देखो तुम्हारा ये तरीका जो है ये गलत है, इसकी जगह पे ये वाला थॉट प्रोसेस इम्प्लांट करो, उसको हटा दो, ये आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। सो वी जस्ट लेट्स स्टडी दिस, एनीवन? I'll read ओके, मी टू। the argumentative method. This method is just what the word implies. It stems from the procedure of Dr. Phineas Parkhurst Quimby of Maine. Dr. Quimby, a pioneer in mental and spiritual healing, lived and practiced in Belfast, Maine, about 100 years ago. A book called the Quimby Manuscript, published in 1921 by Thomas White Crowell Company, New York City, and edited by Horatio Dresser, is available in your library. This book gives newspaper accounts of this man's remarkable results in prayer treatment of the sick. Quimby duplicated many of the healing miracles recorded in the Bible. In brief, the argumentative method employed according to Quimby consists of spiritual reasoning, where you convince the patient and yourself that his sickness is due to his false belief, groundless fears, and negative patterns lodged in his subconscious mind. You reason it out clearly in your mind and convince your patient that the disease or ailment is due only to a distorted, twisted pattern of thought which has taken form in his body. This wrong belief in some external power and external causes has now externalized itself as sickness and can be changed by changing the thought patterns. Yeah, so 1 second. So this argumentative method basically means that कोई भी sickness, Dr. Quimby में ये वाली जो technique है, he has used it majorly बीमारियों को ठीक करने के लिए, body में जो illnesses and sickness होती है. So इसमें sickness वैसे भी कहते हैं that stems from the mind. जो हमारा thought pattern होता है वो हमको बीमारी देता है. सारी बीमारियां, अगर छोटे दर्द भी अगर हमको कहीं पे हो रहे हैं, शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन, लेग पेन, all that is stemming from our faulty thought process. मतलब
कहते हैं कि वो इंटरनल टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और ऐसे केमिकल्स हमारे थॉट प्रोसेसेस से रिलीज होते हैं जो हमको बीमार करते हैं और वो जाके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, है ना। जैसे वो लुइस हे ने जो बुक लिखी हुई है, इट्स अबाउट, उन्होंने सब कुछ दिया है कि ये फीलिंग है तो आपको ये बीमारी होगी, ये वाली फीलिंग है तो माइग्रेन होगा, अगर आपको जेलसी है या रिजेंटमेंट है किसी से तो कैंसर होता है, अगर आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकर होते हो तो फिर आपको लाइक एक्स एंड पेन्स होते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपको लोअर बैक की पेन होती है। तो उन्होंने हर बीमारी को थॉट्स एंड इमोशन से रिलेट किया और बहुत अच्छा सा एक्सेल शीट भी बनाई हुई है कि ये वाली इमोशन है तो ये वाली बीमारी है। एंड बुक का नाम इज यू कैन हील योर बॉडी। बट हम उसमें क्यों जाएं, हम अपने माइंड को ही क्लीन कर देते हैं, है ना। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट, अगर किसी गंदगी की वजह से हाइजीन इश्यूज हो रहे हैं तो उस गंदगी को ही क्लीन कर देते हैं ना। सो इस तरह से इनका यही था कि ये रियलाइज करवाते थे डॉक्टर क्विम्बी कि देखो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न तुम्हारे दिमाग में जो बिलीफ है जिसके कारण तुम्हारी बीमारी हो रही है बॉडी के अंदर, और फिर वो उस थॉट पैटर्न को चेंज करवा देते थे। वो कैसे करवाते हैं ये हम अभी पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ी मीतू। हाँ, you explain to the sick person that the basis of all healing is a change of belief. You also point out that the subconscious mind created the body and all its organs. Therefore, it knows how to heal it. It can heal it and is doing so now as you speak. You argue in the courtroom of your mind that the disease is a shadow of the mind based on disease-soaked, morbid thought imagery. You continue to build up all the evidence you can muster on behalf of the healing power within, which created all the organs in the first place and which has a perfect pattern of every cell, nerve, and tissue within it. Then you render a verdict in the courthouse of your mind in favor of yourself or your patient. You liberate the sick one by faith and spiritual understanding. Your mental and spiritual evidence is overwhelming. They are being but one mind. What you feel as true will be resurrected in the experience of the patient. This procedure is essentially the argumentative method used by Dr. Quimby of Maine from 1849 to 1869. सो ये इतनी पुरानी बात है, मतलब लास्ट टू लास्ट डेकेड की बात है, 1849 टू 1869, जब बिजली भी नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज आल्सो नॉट देयर, इमेजिन मेडिकल साइंस का तो कोई स्कोप ही नहीं था, तब ये इस मेथड से हील करते थे। अब इनका क्या था कि ये पहले पेशेंट्स को बिलीव कराते थे कि देखो अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है, कोई दर्द है, कहीं पे ब्रेकडाउन है, कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये उस पेशेंट को पहले बिलीव कराते थे कि कहीं पे आपका फॉल्टी माइंडसेट या पैटर्न ऑफ थिंकिंग या कोई नेगेटिव बिलीफ है, ठीक है। तो वो पेशेंट मान जाता था कि ठीक है, आई एम रेडी टू चेंज दैट, ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी। फिर उसको ये बिलीव कराते थे कि जिस सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी बनाई है, उस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से पता है कि उसको हील कैसे करना है, ठीक है। और वो ये रिपीट कर करके बिलीव कराते थे कि जिस सबकॉन्शियस माइंड दैट इज इक्वल टू गॉड, वॉट एवर वी माइट से इन टूडेज टाइम। सो जिस सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी बनाई है वो आपको बहुत अच्छे से हील एंड रिपेयर कर सकती है। और उसी से इस थॉट पैटर्न को वो बिलीव करवाते थे, नए थॉट पैटर्न्स को। और फिर ये दैट एवरी पार्ट एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज नाउ हीलिंग बाय द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, एंड योर बॉडी इज इन हार्मनी, होल, हील, कंप्लीट एंड सुपर हेल्दी। अगर ये वैसे ही वो बार बार बोल बोल के अब नया थॉट पैटर्न पेशेंट को पता लग जाता था, तो पहले आर्ग्यूमेंट करके वो पुराना वाला बिलीव कराते थे और फिर ये कहते थे कि अब इस चीज को, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके हम आपकी हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में है। और हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट वो सबकॉन्शियस माइंड ही करेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड और हायर इंटेलिजेंस lies within each and every cell. It is not like an organ.
Okay, it's an energy. जो subconscious mind है is a very powerful energy, okay, which has created the world and has created our body. And वो जो energy है, जो powerful energy और higher intelligence है, डिवाइन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें बाइबल में उसको डिवाइन इंटेलिजेंस के नाम से ही है. तो डिवाइन मीन्स कमिंग फ्रॉम सुपर कॉन्शियसनेस. ठीक है. सो डिवाइन इंटेलिजेंस हमारे सारे 100 ट्रिलियन सेल्स में मौजूद है, और वो जहां पे भी ब्रेक डाउन वाला एरिया है उसको रिपेयर करने में हाईली केपेबल है, बिकॉज उसी ने बनाया है. जिसने बनाया है वो तो रिपेयर कर ही सकता है ना. सो दिस इज हाउ इट इज. और फिर वो जो हीलिंग डिवाइन पावर है हमारी बॉडी की, जब वो एक्टिवेट हो जाती है, द सेम पावर अगर एक्टिवेट कर दी, नाउ इट इज रिजरेक्टेड इन आवर बॉडी. अब वो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो गई है, और आप देखोगे कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, और जो बीमारी है वो टोटली हील हो जाएगी. इसी तरीके से डॉक्टर क्विम्बी अपने पेशेंट्स को हील करते थे, और इसी तरीके से जीसस ने भी बाइबल में जो लिखा हुआ है, एंड ही वाज अ बाइबल फॉलोअर. ओके, सो ये सारे जो हीलिंग मिरेकल्स ऑफ द बाइबल हैं, वो ये प्रैक्टिस करते थे अपने अपने पेशेंट्स के साथ में. इसलिए उसको बोलते हैं द आर्गुमेंटेटिव मेथड. तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने लिबरेट किया by faith and spiritual understanding, by building a faith that yes, you can heal anything in your body. Okay, when you change your mindset, or when you change your belief pattern or the thought process in your mind. पहले faith करवाया, फिर ये वाली spiritual understanding दी. Spiritual understanding क्या थी? That you have subconscious intelligence in each and every cell of your body, जिसने आपकी बॉडी बनाई है, और वो ही आपको हील करेगी. तो आप सोर्स को ही दे दो, जिसने बॉडी बनाया उसी को बोलो कि अब ठीक करो इसको, तो उसको तो पता ही होगा ना. जिसने सारे सेल्स बनाए, अब 10 सेल में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उनको तो पता ही है ना कि इसको कैसे ठीक करना है. एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, लाइक. तो हम ये सबकॉन्शियस माइंड को ही ट्रेन करने का पूरा जो ये पूरी जर्नी है, वो इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं. तो ये इतना पावरफुल चैप्टर है ये पूरा की पूरा. And so we'll study more about it. And thank you, Meetu. We'll be able to read only so much today. Thank you so much. कल पढ़ेंगे हम the absolute method is like the modern sound wave therapy. ये सब ancient healing techniques हैं. मुझे यही लग रहा है कि ये दुनिया ना वापस उसी जमाने में जा रही है. मतलब पहले लोग योगा को बहुत बोरिंग ऐसा समझते थे, ठीक है. अब दोबारा से वापस वो वर्ल्ड ना पूरा सर्कल लेके वापस उस जगह पे पहुंच गया है, जब बिलीफ इन द हायर कॉन्शियसनेस सबके लाइफ में धीरे धीरे एक्टिवेट होती जा रही है. और जितनी जल्दी हम उसको बिलीव करने लग जाएंगे, उतनी ही सुंदर हमारी जिंदगी होती जाएगी. तो मुझे लग रहा है खाने पीने में भी हम लोग वापस ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं. इन द सेंस वी वांट टू ईट सिंपल फूड, वी डोंट वांट मिर्च मसाले. ओके, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, but we want to eat simple food, we want to eat good food. वापस से मतलब जो इवन न्यूट्रिशन साइंस कहती है कि आपकी बॉडी अल्कलाइन है, तो आपको वेजिटेरियन डाइट खाना है, सब्जी एंड फ्रूट्स खूब खाने हैं, आर्टिफिशियल चीजें, फैक्ट्री मेड चीजें नहीं खानी है. तो वापस हम दोबारा से उसी रूट्स पे आ गए. अभी भी लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा अच्छे से चबा चबा के खाना खाओ, जमीन पे बैठना शुरू करो अगर बैठ सकते हो तो, अगर फिटनेस अलाउ करती है, जिसको आज की तारीख में हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं. तो जमीन पे बैठना तो हम इंडियंस शुरू से ही बैठते हैं, लेकिन अब फिजियोथेरेपिस्ट आके हमको ये फिजियोथेरेपी कराते हैं कि वो जमीन पे बैठाते हैं और हमको कहते हैं उठो, और कहते हैं कि इससे अच्छी फिजियोथेरेपी कुछ नहीं हो सकती है नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. सो वापस से हर चीज में हम उसी पैटर्न में आते जा रहे हैं जो हमारा पुराना एंशिएंट साइंस था, मेडिटेशन, हीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which is I really feel it is so beautiful, to live the life which is so close to the nature, deep breathe करना, सांसों पे ध्यान देना. सो ये सारी चीजें, जब पेड़ उगाना, दोबारा से मतलब सब कुछ वही सारी चीजें करना. So it's actually very beautiful, और ये जो healing techniques हमने visualization, sleeping method, thank you technique, bird on method, argumentative method, and so many of them we have learned. This is truly transforming our life, isn't it? I mean, like I can see a difference in my life. Itna andar se, like there is so much of happiness and calm and peace and hope and positivity and self-love.
and faith and belief that I can now do anything and everything. So on my vision board, I have some pictures of the things where I want to take my organization, my company where I work, which is VLCC. So I want to see them grow to that level. And I have a very specific number. I have made a bar chart, and I have the graph of this year. And then I have the graph of what I want to project in 23, 24. I have made that. I see myself, in the best of health on my vision board. I have this thing, jo aaj ka hamara magic ka assignment tha. Thank you for all the money I have been given throughout my life. I have pasted it there. तो कोई दिन नहीं होता कि जब मैं इसको देख के अपने सारे बैकग्राउंड के मनी को एडमायर और लव ना करूं. So सारा जो हमारा कल का था, the gift of health is keeping me alive. So there's no day when I don't look at it and I say thank you for it. So life becomes actually that beautiful. You're surrounded by grace and happiness and calm. और इस process में अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे लाइफ में है इन टर्म्स ऑफ पीपल और सिचुएशन, आप देखना वो लोग हमारी जिंदगी से धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे. दे विल गो अवे फ्रॉम आवर लाइफ, बट जस्ट एक्सेप्ट दैट. दैट्स जस्ट फाइन. मेरे साथ तो कर लिया. उठा दो, उठा ले. Yeah. So what happens is that, like you will see that there will be certain people in your life. अगर आपको लग रहा है कई लोगों के साथ heal and repair नहीं हो पाती है relationship, मतलब वो इतना that level of toxicity होती है, लेकिन आपका energy level high रहता है ना, अपने आप ये जो low vibration वाले लोग हैं, धीरे धीरे अपने आप they will get cut off from your life. They will not be part of your life, and this will happen automatically. So ये सब भी होता रहेगा. बहुत सारे वीड आउट होंगी चीजें जिंदगी से. वीड्स जो होते हैं ना, वीड्स उग जाते हैं बीच बीच में, तो वो वीड आउट लोग सिचुएशन, ऐसी चीजें वीड आउट होती रहेंगी धीरे धीरे. बिकॉज जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती, जो बहुत ही लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं ना, आप उनके साथ बात ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, बिकॉज वो ही नहीं है, दैट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ही नहीं है बिल्कुल भी. So you will see people getting weeded out of your life also. So बहुत अगर extremely toxic लोग हैं जिनके energy की वजह से आपकी growth कम होती जा रही थी, ठीक है, वो अपने आप चले जाएंगे. But accept it with grace. This is what life is. Because when your life is expanding and it is becoming more beautiful, and so lit up, so obviously darkness वाले zones आपकी जिंदगी में वैसे भी कम होते जाएंगे. और होंगे भी तो वो माइन्यूट टाइम के लिए होंगे. जैसे मे बी व्हेन यू स्लीप ओवर इट, आप नेक्स्ट डे उठोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एंड इट विल ओनली गेट बेटर एंड बेटर फॉर यू. सो ऑल दीज थिंग्स कीप हैपनिंग टू अस. ओके, सो that's how it is. Like, yeah, so thank you. Anyone wants to share or add anything to today? Hello, good morning, ma'am. I want to say something. Yeah, Lata. Yeah, Belated thank happy you. birthday to you. US Thank में अभी भी आपका बर्थडे चल रहा है. Thank you so much, Actually, happy ma'am. birthday from all of us. मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ. सबने इतनी सारी गुड विशेस दी है मुझे. मैं आप बता नहीं सकते, मेरी वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स आई हैव, तो ना फर्स्ट टाइम आई रिसीव सो मच विशेस फॉर ऑन माय आप तो बर्थडे. थे इस सेशन में. आप प्लीज ऋतु Yeah, खन्ना को ma'am. थैंक यू बोलिए. मेरी फ्रेंड ऋतु है ना मैम, उसने मुझे ग्रुप ज्वाइन कराया. आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. उन्होंने इतने सारी विशेस भेजे, मैंने थोड़ा ना हेजिटेशन होता है. नहीं, ऋतु ने ही हमको बताया कल आपका बर्थडे था. आप थे ही नहीं Actually, ना, madam, तो ऋतु ने हमको बताया कि आज मेरी फ्रेंड लता का बर्थडे है और उसकी 10 दिन में लाइफ इतनी चेंज हो गई है, वो बहुत खुश है, एंड आई विश हर कि वो खुश होती जाए. जी उन्होंने जी ही मैम. हमको बताया. सो आपको Actually, ऋतु को मैडम, मैं थैंक बता यू नहीं बोलना है. सकती, उनकी वजह से जैसे आपको इतनी सारी विशेस मिली. हम तो हमेशा ब्लेस करने को तैयार बैठे रहते हैं, हमें तो मौका चाहिए होता है ब्लेसिंग्स बता नहीं देने सकते, का. मतलब ये और जैसे ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है ना मैम, तो मेरे अंदर से सबसे बड़ी थिंग ना, जैसे ना मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई थी. तो वो नेगेटिविटी सबसे पहले, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की ना, वो नेगेटिविटी मेरे अंदर से चली गई. क्योंकि मैं एवरीबॉडी वाज सो सरप्राइज. सबने इतना ट्राई किया मेरे अंदर से उसको निकालने के लिए. इवन ऋतु हैड ट्राइड सो मच कि, लेकिन वो मेरे अंदर से गई नहीं. मैंने आपका फर्स्ट क्लास अटेंड किया ना, तो मतलब मेरे अंदर से निकल गई. अब मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ऐसे बिहेव करो, ये करो.
So I'm very grateful to Ritu and to all of you, especially मैम आप, मैं जब भी आपको सुनती हूँ ना तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। जब भी मैं अर्चना मैडम अपनी बताती है, मोटिवेट करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी कर सकती, आई कैन डू ऑल्सो। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे लिए इतने सारे लोगों ने इतने गुड विशेस भेजे, तो मैं क्या कहूँ मैम, मेरे पास वर्ड्स नहीं Congratulations है। कि आपका बर्थडे हमने स्पेशल बनाया या मैम इट वाज वेरी और you स्पेशल। will have the best of year and the best of life. That goes without saying. So just be थैंक a यू। Lata, just be little consistent with the practice. मतलब practice के साथ में थोड़ा regular कीजिए। अगर कभी मिस हो जाता है तो अब हम YouTube पे भी हैं, right? जी So it's Magics and Miracles by Dr. Deepti Verma. तो Priya has been kind enough to post it as early as she can. सुबह सुबह ही वो post कर देती है ताकि जब हम ट्रैवल करके ऑफिस जा रहे होते हैं या कहीं तो हम सुन सकते हैं, वापस आ रहे होते हैं तो सुन सकते हैं, कभी दोपहर को हमको टाइम मिलता है तो हम दोबारा सुन सकते हैं। कई बार 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 सुनने की जरूरत पड़ती है कोई चीज, जी है ना? मैम So डेफिनेटली। thank you so much, Lata, and enjoy the best of your year. Thank you for sharing. हाँ Sandhya, you've raised your hand. थैंक यू। Yeah, good morning, ma'am. Thank Good you, morning. thank you, thank you. Thanks a Can you lot. put on your camera, please? Yes, just हाँ जी। visible now. Okay, ma'am, as you all know, 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और मैं 10, 12 दोनों ही पढ़ाती हूँ। Though I'm getting 100% every year, so ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है जो मुझे शेयर करनी है कि सोशल साइंस में बच्चे के 100 में से 100 आना बहुत बहुत मुश्किल टास्क है। जो मैं 17 ईयर से टीच कर रही हूँ और अभी तक सिर्फ 3 टाइम ऐसा था कि मुझे 100 में से 100 बच्चे के मिले, और दिस टाइम आल्सो बिकॉज ऑफ योर क्लास, बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई गॉट अगेन 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10। Congratulations। और आप प्रैक्टिसेस क्या किए ये बताइए, क्या मैं आपका एफर्मेशन था, क्या आपका इंटेंशन था? मैं डेली जो मॉर्निंग में काउंट माय ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, उसमें मैं लिख रही थी डेली कि थैंक यू गॉड टू दैट आई गॉट 100% रिजल्ट इन क्लास 10th and 12th and my student got 100 out of 100 in my subject. So every means since I think 25 days I was writing the same thing, और रिजल्ट आया अभी 4 दिन पहले। 2 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं शेयर नहीं कर पाई, बट आई एम वेरी हैप्पी कि 100 आउट ऑफ 100 सोशल साइंस में। इवन हम लोग सेंटर चेकिंग पे भी मैं जाती हूँ, खुद मैं बोर्ड के पेपर चेक करती हूँ, जब वहां पर किसी के 100 आते हैं ना तो उस पेपर को 3 बार रिवाइज किया जाता है। HE भी रिवाइज करती है, टीचर और को जो टीचर होती है वो भी रिवाइज करती है कि 100 नहीं आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तो 1 नंबर कहीं काटो, और वो सर्च किया जाता है कि वो 1 मार्क कैसे कटेगा। इट मीन्स कि अगर 100 में से 100 आए तो मेरे बच्चे ने कितना अच्छा पेपर किया कि टीचर को कुछ मिला ही नहीं कि वो काट सके। आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। इसके साथ एक चीज और कि मेरे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती रहती थी, बहुत सारी है, लाइफ है, अप एंड डाउन चलता है, बट स्टिल मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी आ चुकी है कि जैसे कुछ गलत हो तो मैं अंदर से, जैसे आप कहते हो आर्टिफिशियली बोलना है, नहीं भी निकल रहा है, बट मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई सामने से कुछ बोल के जा रहा है, इवन मेरे हस्बैंड इज वेरी हैप्पी, क्या बात है, तो कुछ रिप्लाई नहीं करती है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ओके ओके दैट्स फाइन, जो तुम बोल रहे हो सब ठीक है, मैं चली जाती हूँ उस प्लेस को। सो इट्स चेंज माय लाइफ वेरी मच, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी, Congratulations, थैंक Sandhya, to be having these kind of thoughts. फ्यूचर के जो बच्चे हैं उनको शेप अप करने के लिए अगर आपने मतलब इतने अच्छे नोबल थॉट्स हैं तो वो सारी एनर्जी आप ही की तो लाइफ में आएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आप मतलब प्रैक्टिसेस को इतना डिलिजेंटली करते हो और नहीं भी दिल से निकल रहा तब भी आप मैकेनिकली इसको कर रहे हो। सो ये बहुत बड़ी चीज होती है टू बी एबल टू फॉलो दिस, और इसकी वजह से यू सी दैट कितना ज्यादा स्क्रबिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ योर लाइफ होगी। बहुत ही बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और एक मेरा यू। ड्रीम और था मैम, जो कि लाइन अप हो चुका है, बहुत जल्दी मैं न्यूज़ सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल जी, हम वेट कर रहे हैं हो ही गया हमारी तरफ से वो। हाँ जी खुशबू। Not able to hear you. अभी आई वॉइस मैम? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग मैम। आज की जैसे प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग मुझे शेयर करना था। फ्यू मंथ्स बैक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मतलब आई डिड नॉट स्टार्ट, इनकम मेरे पास अभी आ नहीं रही थी। सो प्रैक्टिस से मैं डाइटिशियन का वाला जो प्रैक्टिस कर रही थी तो उससे थोड़े थोड़े आते थे,
लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। फुल फ्लेजेड मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था आपके साथ, उसके बाद मेरी जॉब लगी थी और वो एक कांस्टेंट इनकम आने लग गई। उसके बाद जैसे मुझे एक और प्रैक्टिस आती है जिसमें आपने ऐसा बोला होता है कि मैजिक चेक लिख लो, तो वो अमाउंट पहले छोटे से स्टार्ट करना होता है। पहले छोटे से स्टार्ट किए थे सारे एंड वो एक बार फुलफिल नहीं होते थे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी 28 डेज की नहीं होती थी कंप्लीट। तो अभी मैंने 28 डेज की प्रैक्टिस कंटिन्यू स्टार्ट कर ली एंड एक बार फिर जो आप प्रैक्टिस मेरे को बोलते हो कि अपने लिख सकते हैं कि द सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग टू मी इजीली एवरी मंथ, तो मैं वो लिखना स्टार्ट कर दी। तो इनिशियली मैंने 50 से स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज हैविंग ओनली 10,000 के आसपास मेरे अकाउंट में, तो 50 आने लग गया 2 महीने बाद। एंड उसके बाद मैंने इस बार ऐसे ही लिख दिया, आपने बोला कि यूनिवर्स को बिजी रखना जरूरी है, तो इस बार मैंने ऐसे लिख दिया था कि 1 लाख के क्रॉस हो जाना चाहिए एवरी मंथ मेरे पास विद ईज एंड जॉय आ रहे हैं। तो इस बार मैम ऐसा हुआ फर्स्ट 10 डेज में मेरे पास 1,09,000 जितना आ गया। एंड ये वाला मेन प्रैक्टिस जो है जिसमें ये सारा पुराना बचपन से लेके सारा सोचना होता है, तो अभी तक जितनी भी बार किया था इतना डिलीजेंटली नहीं किया था जितना लास्ट टाइम किया। लास्ट टाइम जैसे बर्थ हुआ उससे पहले से और ईच एंड एवरीथिंग, जैसे आज आपने बताया हर चीज सोची थी, हर चीज के लिए थैंक यू हुई थी, तो सारी चीजें उसमें हुई थी अच्छे से और इस बार इसीलिए इतना अच्छा हुआ। Congratulations that Thank जितना आप मांगते जा रहे हो आपको मिलता जा रहा है, तो वो ऐसे नहीं मिलता, वो जब एनर्जी हाई जाती है it has to match the frequency of the money. So Yes, congratulations, you've just begun your career और ऐसे में जिस तरह से आपके इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, so may it become like quite a few lakhs, अब 50 लाख 1 करोड़ भी आप क्रॉस करो, that's our wish and prayer. And I'm sure that you are capable of doing anything with your frequency, and you're working so diligently on everything that we study and what I share. So great, congratulations, and thank you so much for sharing. The sharing itself will bring in a lot of money to your account. yes, Just sharing about money will, matlab, because any victory that happens, any achievement, it is actually happening for somebody else's growth. ये जिस दिन हम समझ जाते हैं, जैसे अगर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है, अब मेरी हेल्थ से मैं क्या क्या ऐसी चीजें कर सकती हूँ कि मैं अपनी फैमिली, कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, फ्रेंड सर्कल, उन सब की जिंदगी बदल पाऊँ, कैन आई बिकम मोर एक्टिव, कैन यू गॉड, इट इज नॉट कि मैं घर पे बैठ के बस नेटफ्लिक्स देखती रहूं, इसलिए थोड़ी मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, इट इज अच्छी हुई है टू यूज माई हेल्थ फॉर समवन। सो जितनी हम अपनी जिंदगी को सेल्फलेसली किसी और के लिए यूज करते हैं, उतनी हमारी जिंदगी की एनर्जी चेंज होती है और उतनी ही ज्यादा अबंडेंस हम अट्रैक्ट करते हैं। So this itself, when we kind of really realize, then life is never going to be the same again. So you've done that, Khushbu, and wish you prosperity so much कि आप पैसों की गिनती भूल जाओ। थैंक यू। Ma'am, I need to ये नहीं share. पता हो कि इसमें कितने जीरो होते हैं। मैम एक और This- शेयर। हाँ बोलो। मैम कल फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मतलब क्राउड के सामने आके बोलना इज एक, हमेशा मेरे पास स्टेज फियर होता था। आई हैव नॉट बीन लाइक इस टाइप का कि Public कभी speaker, फ्रंट आके। तो मैं कल मेरा एक प्रेजेंटेशन था, सेमिनार था जिसमें मेरे को आके बताना था थोड़ा सा डाइट के बारे में, तो दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बोल तो दिया कि आई विल कम। उसके बाद मेरे को एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वसनेस थी कि बोलना है स्टेज पे आके, लेकिन उसके बाद एक चीज और थी, मैं बोला ठीक है मैं तो सुबह मैग्निफिसेंट आउटकम कर दूंगी, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ईज एंड जॉय से हो जाएगा। तो कल मैंने सुबह उठते से व्हेन आई वाज इन अल्फा स्टेट, मैंने सबसे पहले यही बोला कि मेरा बहुत अच्छा गया है, एवरीवन इज एंजॉयिंग माय स्पीच। और उसके बाद सब लोग ताली बजा रहे हैं एंड देन जैसे एवरीवन इज सराउंडिंग मी विद सो मेनी क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, इतना मैंने सोचा हुआ था। तो कल यही हुआ, मैं वहां पे गई, मैंने जैसे प्रेजेंटेशन रेडी किया था, फिर पता चला वहां पे प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर ही नहीं है। देन आई गॉट कंफ्यूज, अब क्या करना है, क्योंकि मैंने तो पूरा बना के किया था। मैं बोला ठीक है इम्प्रॉम्प्टू रखते हैं, ऐसे सारा बता ही सकते हैं, तो मैंने बताया भी पूरा। एंड एट द एंड मैम ऐसा हुआ कि एवरीवन वाज सो ओवरजॉयड एंड सब लोग आके ऐसे पूरे पकड़ के मैम ये बताइए, मैम ये बताइए, इसमें ऐसा कर सकते वैसा कर सकते।
लाइक एवरीवन वाज देयर एंड फिर वो इतना अच्छा लगा और वहां पे पहुंचते से स्टेज फियर जैसा कुछ था ही नहीं मेरे लिए, तो इतना अच्छे से मैंने अराउंड 135 लोग थे, वो पूरे क्राउड को केटर किया मैंने। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एंड एट सच यंग एज अगर आपने 135 लोगों को पब्लिकली एक स्पीच दी, सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर अप्लाइंग मैग्निफिसेंट आउटकम अगेन फॉर दीज थिंग्स। हम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग खुशबू, लवली शेयरिंग्स। हाँ जी शीबा, फाइनली वी गेट टू हियर योर वॉइस। Shiba. Oh, let's me unmute myself. Hey And show the everyone. face also. Okay, let me see. Okay. Yeah. Okay. I cannot see myself, so. So I have two, one professional and one related to the money. Professional is कि अभी मैंने अपना ना department change किया था, so I'm still part of HR, but facilitation से I moved to the operations. So it was a new thing, new learning. So बहुत सारी learning हुई, but little bit I shared earlier as well. तो उसमें क्या था कि हम लोग दो हैं basically co-leads, but he was the one who's presenting and doing all the stuff. So initially जैसे होता है frustration, यार काम तो मैं भी कर रही हूँ, but you know I'm not getting it. So then I was yeah, so I was like, okay, you know what, I'll just keep supporting what he's doing, and I just kept writing, you know, I'm leading all these calls, I'm doing this, I'm doing that and stuff. And eventually, slowly, I don't know how it happened, we transitioned into कि अगर दिन में 6 calls हैं, he started with, okay, you know what, how about we divide the calls? You take 3, I'll take 3. I'm like, okay, absolutely. And now it's come to the point that I'm leading the whole operations side of it, because I don't know, something or the other keeps coming. And he gets busy and he's like, oh, can you do the office hours? Can you take this call? And I'm like, yeah, absolutely. So I'm getting to know a lot of people. And of course, there's also a lot of learning. Yeah. What practice did you do? What were your prayers? Like, what did you do when you were facing this tussle initially? Yeah. So what was it that you did? Yeah, so his name is Ryan, my partner in crime. We call each other. So I just kept writing, thank you, Ryan, for believing in me. Thank you for letting me lead all these calls. Thank you for, you know, helping me with the preparations. And so that was pretty much it. But I continuously wrote it, and I visualized myself, you know, starting those calls and ending those calls. And, you know, just like Khushbu mentioned, you know, answering those Q&As at the end of the session and all that stuff. So just basically. And how long did it take you to transform the situation? About 2 months, 2.5 months. Okay, great. Yeah, awesome. Couple of months. Yeah, I started in February, end of March. तो अभी ये transition हुआ. Okay. मनी वाला छोटे छोटे बहुत सारे, but I'll tell you one quick one. So मेरे को ना monitor खरीदना था. So I already have one. But क्या है कि वो वाली डेस्क के सिटिंग डेस्क, तो आई हैव अ स्टैंडिंग डेस्क आल्सो, तो बार बार क्या होता है कि मूव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. सो आई वाज लाइक ओके, आई नीड अनदर मॉनिटर. तो अभी लास्ट वीक की बात है. सो वन ऑफ माय फ्रेंड नेबर्स कॉल्ड. आई वाज लिटरली गेटिंग रेडी टू गेट आउट टू बाय द मॉनिटर. सो शी वाज लाइक, क्या कर रही है? मैंने कहा मॉनिटर चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड गेट वन. कहती है रुक, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है, तू वो ले ले. मैंने कहा, you sure? Like monitor is like, and I needed a big one. She was like, हाँ. So she's like, her husband कहती अमित ने नया खरीद दिया because he's into technology and all. कहते उसने नया खरीद लिया, पुराना वाला मैं सोच ही रही थी. I was trying to get rid of it. तेरा अगर लग जाता है, काम आ जाता है तो ले ले. मैंने कहा good. So I got that monitor for free. Yeah, this is what we studied today, no, in Magic Money, that you start getting discounts, something that you really want, you get that as a gift. Right, yeah, exactly. उसी से मेरे को लगा कि आज चलो मैं शेयर कर देती हूँ उसको. And that friend जिसका मैंने पहले भी शेयर किया था. So I keep writing for her a lot because of her health things. So she's also getting better. She's recovering. उसकी health भी improve हो रही है. And of course, this happened. Wow, so that great. was. You become an alchemist, huh? Yeah. Congratulations, Shiva. Awesome. Thank you. Congratulations and thank you for sharing. It's indeed great. Yeah, so Yeah. we have 2 more hands raised, Priyanka and Rin. Congratulations, Shiba. So Priyanka, yes, you want to share? Yes, ma'am, just a small sharing. Uh-huh. Actually, you know, I'm going with my children every day. So our schools are different.
तो बच्चों को मैं पहले ड्रॉप करती हूँ, देन आई गो टू माय स्कूल. तो नाउ एल्डर वन इज इन 10th क्लास. तो उसकी स्कूल टाइमिंग वाज लाइक 8 to 12 एंड आवर स्कूल टाइमिंग वाज 9 to 1. सो आई वाज लाइक फर्स्ट डे से ही आई सेड टू यूनिवर्स के हम दोनों की सेम स्कूल टाइम हो गई है, बच्चा मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ आ रहा है. बट फाइनली उसको टाइम टेबल मिल गया 8 to 12 एंड माइन वाज 9 to 1. So 1-2 दिन वो गई, and yesterday all of a sudden a message came from our principal that we are changing our school timing from 8 to 12. Now, so I was तुम telling तो my husband, पता नहीं गवर्नमेंट के ऐसा रूल्स क्यों हो भी रहा है. चेंज कर दो. थैंक यू बोल के. So, ऑसम. so this was actually really awesome, ma'am. I had that trust कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है. But जब टाइम टेबल मिल ही गया था, तो then I thought कि Wow, wonderful, wonderful. Congratulations and have all your wishes answered. yes, ma'am. Thank Great. you. And ma'am, one more thing, YouTube से हमें इतना फायदा हो रहा है. So I wrote that yesterday also. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, बिकॉज मॉर्निंग में वो थोड़ा हेजिटेंट होते हैं ये सुनने में कि हमें जूम वूम नहीं आएगा. सो आई टोल्ड देम कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और डेली की रिकॉर्डिंग आप देखा करो. सो दे आर सो हैप्पी. वो मेरे सामने तो दे शो कि हमें सब बात है, ये है वो है, बट मुझे पता है पीछे से वो सुन भी रहे हैं. एंड द मीन्स yesterday they thanked all their body parts. अच्छा. Wow. Yes, so they did that. और अब उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोनों ने, and they'll keep listening. ये मुझे पता है, अब वो कर लेंगे. चलो मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड लाइफ विश कर देना. Thank you so much, सुन ही ma'am. लेंगे आज वो, बिकॉज अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ जी, ma'am. Daily they'll listen. So this is Wow, great amazing. help from you Thank and you Priya. so much. Thank you so much, ma'am. Thanks That's for my changing my intention, life. that right now we reach out at least to 10,000 people ताकि उनकी जिंदगी बदले, because there are so many people who are suffering. उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी कितनी light and easy होती है. You know, मतलब there's no reason Ma'am, to I suffer. was also thinking that like I am planning कि मैं अपने WhatsApp पे या उस पे स्टेटस पे लिंक डाल देती हूँ. There are many people वो एक बार खोलेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, and they'll definitely they'll subscribe. Sure. Yeah, है ना, do that that. I'm Even going in to our do. group, there are so many people who attend in Yes. the morning, but they still don't know कि हम YouTube पे, मतलब वो प्रिया डालती है, ma'am. उनको पता नहीं है कि वो ये वाली recordings डालती है. Yes, ma'am. अभी भी मुझे बताना पड़ता है, you know, like उनको नहीं पता है, जबकि वो अटेंड कर रहे हैं. तो मे बी वो ग्रुप में मैसेजेस नहीं पढ़ते होंगे या जो भी है. तो people still Yes, don't ma'am. know that we are on YouTube now every day. Yes, ma'am. और जो संध्या ने मैम शेयरिंग की ना, वन ऑफ माय टीचर, उनको 17-18 इयर्स के करियर में, द वन आई वाज टेलिंग यस्टरडे, Yeah. जिनकी कार का उन्हें एग्जैक्ट वही अमाउंट मिला. सो शी इज लिविंग नाउ दिल्ली, वो बैंगलोर जा रही हैं. सो शी लाइक इन हर करियर ऑफ 18 years, first time in her subject, one student got 100 out of 100. She just shared. Yeah, she just shared. I told you ना, means around 7 उनका कुछ और शुरू हो जाता है. So she leaves this group और फिर वो उसमें join कर लेती हैं. So that's why. But This is she is a amazing, silent Priyanka. listener. So all उनकी सारी victories की energy भी तुम्हारे पास आएगी ना. You made her join. Ma'am, I feel so glad ना, जब वो मुझे बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैंने ही सब कुछ ले लिया, मुझे ही सब मिल गया है. Like I feel means amazing, and that's all due to you. Definitely. Thank you so much. Thank you ma'am. so much, Priyanka, for always sharing. तुम गाड़ी में बैठी हो, ड्राइव तो नहीं कर रही ना? नहीं मैम, मैंने रोक लिया साइड में. Okay. Thank you so much. Thank you so much for sharing. Renu, we can quickly take it, then we'll wrap up. Renu, yeah. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. कैमरा भी ऑन Ma'am. करना होता है. अच्छा मैम, एक सेकेंड. या मैम. हाँ जी. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. मैम, कुछ दिनों से ना मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी और क्लासेस ले रही थी ऑन एंड ऑफ, तो थोड़ा लैक ऑफ मिरेकल्स हो रहे थे लाइफ में. बट फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज, तो इट्स लाइक जब से डे 1 बुक स्टार्ट हुई है, मैं बिल्कुल डेडिकेटली कर रही हूँ. तो मैम, कल ही लाइक आई वेंट फॉर अ डिनर एंड उधर ना कुछ गेम्स थे और उसमें गेम्स के प्राइजेस रखे हुए थे, कुछ 15, 17, 18 आई थिंक. तो मैंने कोई इंटेंशनली नहीं, बस एक चीज को देखा एंड एकदम मेरे मुंह से निकला, देखना ये तो मैं ही जीत के जाऊंगी. एंड मे वोंट बिलीव, माय सन, माय हस्बैंड एंड मी playing, and we won only one gift, and it was that only. It was? मतलब it was the gift that I मतलब you Wanted. know मेरे मुंह से जो निकला था, हाँ I wanted, मैं मतलब I really didn't want that gift, but मेरे मुंह से निकला था कि ये वाला गिफ्ट तो मैं ही लेके जाऊंगी, मुझे ही मिलेगा. तो मैम वो मतलब एक ही हम गिफ्ट जीते हैं उस 15 गिफ्ट में से, और वही गिफ्ट हमें मिला, बिकॉज हर
चीज का एक मतलब गिफ्ट था कि आपको इस चीज पे ये गिफ्ट मिलेगा, तो हमारा जो गिफ्ट था वो वही था जो आई वांटेड टू हैव, यू नो. सो इट इज अ स्मॉल मैजिक, बट मतलब होता है ना मैम, It is not a small magic to win in so many people and to get the gift that you want. It is not a small magic. एंड मैम एक ना मैं ड्रीम लिस्ट में चीज लिख रही हूँ, आई विल शेयर लेटर ऑन. वो चीज हमारी 6 से 7 साल से अटकी हुई थी मैम, एंड मतलब होप ही नहीं थी अब तो 2-3 साल से कि हो पाएगा. एंड टुडे माय हस्बैंड इज गोइंग फॉर द मीटिंग. आई एम क्रॉसिंग माय फिंगर्स कि वो चीज हमारी पूरी हो जाए. एंड रियली मैम अगर ये हो जाएगी तो मेरा ड्रीम लिस्ट में एक और मेरा क्रॉस लग जाएगा. तो जस्ट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 days practice, मतलब miracles are started coming on the way. देखो 10 की ड्रीम लिस्ट होती है, तुम अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाओ, that which is the 10th ड्रीम now you want to add, because वो तो कटी जाएगी. उसकी जगह तुमको ऐड क्या करना है इसके बारे में सोचो, एनर्जी उसमें दो. या मैम 10 नंबर तो मेंटेन करके रखना है ना. या मैम 2-3 चीजें तो हैं जो कट जानी चाहिए इस साल बिल्कुल. हाँ, तो एकदम से ऐड कर लिया करो. मेरा तो जिस दिन वो पूरा होता है ना उसी दिन एक और ड्रीम ऐड हो जाती है. तो वो 10 नंबर इज मेंटेन्ड ऑलवेज. इट नेवर बिकम्स 9. इट्स ऑलवेज 10. So think about what is that thing that you want, because वो तो कटी जाएगी आज. Okay. ठीक है, चलो guys, we'll just log in. Thank you So ma'am, I so need much everyone's with blessings. all So my आज heart. Thank you Renu and congratulations. Dipti. Yeah ma'am, I need your blessings for today's meeting of my अरे husband. वो it will be done. Fruitful तभी तो magazine. मैंने बोला कि आप उस वो तो स्ट्राइक हो जाएगी ना, आप उसकी जगह आपको कौन सी ड्रीम ऐड करनी है इसके बारे में सोचो. That's Yeah, ma'am. already done. Thank you ma'am, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Have a beautiful Wednesday and the best day of your life. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.